we don't send this healing from eyes or medicine. It is done by our both hands. The energy flows through these meridians of the hands. Okay. हमारे हाथों और पैरों के नीचे एनर्जी मेरिडियंस हैं. सो हम अपने हाथों के एनर्जी मेरिडियंस से हीलिंग देते हैं. आजकल आपको ओवर शेयरर्स बहुत मिलते हैं. हाँ, हर कोई सोशल मीडिया पे डाल दिया दोस्तों. Right, they are putting statuses where they write sad things because they want people to come and ask them. See, they have voids in their life. अपने आप को छोटा दिखाने से भी उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही कि चलो इसी तरीके से somebody will approach me and there would be some conversation because they are missing out on conversation. Right. आपको पता है ये रखने से ये चीज टूट जाएगी यहाँ पर, फिर हम उसे उसी एज पे रख रहे हैं. आफ्टर 10 मिनट्स वो ब्रेक हो रही है और फिर हम रो रहे हैं. हमारे डिसीजन सेम नहीं है एंड देन वी एंड अप इन अ गिल्टी कॉन्शियंस. मुझे पता था, मैंने फिर भी किया. मेंटल इश्यूज आर द वर्स्ट इश्यूज व्हिच एवरीबॉडी इज फेसिंग टुडे. राइट. आधे लोगों को पता नहीं है, उन्हें है. जिन्हें पता है उन्हें इसी टेंशन से बढ़ता जा रहा है कि मुझे है. नेहा पुरी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द अल्फा पीपल के चैनल में. वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल कि आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से टाइम निकाला और आप आए. सो थैंक यू. Likewise, sir. Thank you so much for having me. It's a lovely experience to be here. I am looking forward to the whole session. थैंक यू मैम. सो आई एम श्योर कि ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है. सो मैम, I'll फर्स्ट try ऑफ my ऑल, best to put my 200% for the viewers and everyone. दैट्स ग्रेट. ओके. सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब आपका रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो एक चीज मेरे माइंड में से पहला क्वेश्चन ये था कि आपने अपना जो नाम लिखा है ERR नेहा पुरी. सो व्हाट इज ERR? Okay. So it is Eir. Eve. So Eir is the goddess. Okay. It's an Icelandic name. She is the Norse goddess of healing. So I am also a healer. So I just dedicated the whole thing to her for her blessings. कि मेरी healings भी उतनी ही powerful हूँ. So that's why my studio, my whole holistic healing experience is called Eir. Okay. This is the name. That's great. और ये आपने इतना सारा कुछ लिखा हुआ है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस ये है. यू ऑलरेडी डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथी. Yes. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? So naturopathy is a science of healing where we include natural modalities like light therapies, mud therapies, holistic nutrition. हर चीज holistic approach से add की जाती है. ओके. There is no kind of popping pills here. We are not giving any kind of allopathic medicine here or homeopathy here. ये आयुर्वेदा से भी अलग है. ओके. राइट. यहाँ पर वात कफ पित्त है, बट हम योगासन्स भी यूज करते हैं. मड पैक्स हो गए, आइस पैक्स हो गए. अकॉर्डिंग टू एवरी इशू वी हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन. इवन वी ट्रीट साइकोसिस, problems like psychosis with the help of chromatography, that is light therapy. Okay. So this is the beauty of naturopathy. So yes, I am a doctor in naturopathy. That is great. So मैम, आज हम आपके एक इतने सारी जो एक्सपर्टाइज फील्ड्स हैं उनमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे. That is Reiki healing. Yes, sir. So let's start with what exactly is Reiki healing or how it started? Okay. How it started for me. हाँ, yeah, obviously. Okay. So, Reiki healing came into my life as a blessing 8+ years ago. Oh. When many people did not even know Reiki क्या है. आज भी बहुत लोगों को नहीं पता है. So, Reiki healing is an underdog in the healing modalities, according to people. People rush to astrologers, people rush to numerologists, palmistry, tarot readings, dowsing, और बहुत कुछ है. The avenues are endless. Reiki healing तक आते आते pace slow down कर जाते हैं. But Reiki healing is the most powerful. I'm not saying just because I am a Reiki healer, I do different modalities also. But the results जो मुझे Reiki healing modality से लोगों की life में changes मिले are beautiful. It came into my life as a divine intervention. I was like, not I would say at the rock bottom of my life, but yes, there were issues, there were troubles. We are all humans. We all have triggers. Obviously. So जो मेरे triggers थे, to manage them, to have a better life, I take a shot at Reiki healing.
It helped me tremendously. मेरी लाइफ में बहुत extremely beautiful changes आए. And then I started healing others. So जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि रेकी हीलिंग क्या है. So रेकी healing is divine energy calling. We call upon divine universal energies. And then we send this healing to our patients. Okay. And we don't send this healing from eyes or medicine. It is done by our both hands. The energy flows through these meridians of the hands. Okay. हमारे हाथों और पैरों के नीचे एनर्जी मेरिडियंस हैं. सो हम अपने हाथों के एनर्जी मेरिडियन से हीलिंग देते हैं. तो जैसे आप किसी को हील कर रहे हो या एनर्जी दे रहे हो तो वो क्या फीलिंग होती है, मतलब सामने वाले को फील होता है कि कुछ बॉडी के अंदर एंटर हुआ या कुछ टाइप की एनर्जी? देखिए, डिपेंड करेगा कि सामने वाला इंसान कितना रिसेप्टिव है. कई बार लोग डे 1 से बहुत रिसेप्टिव होते हैं. कई लोगों को हम सेशन बाय सेशन चैनल ओपन करके रिसेप्टिव करते हैं. ओके. डिपेंड्स. See, like you and me are sitting here, okay? And now if I'm a very happy person, you are not feeling anything, but when I'll go from here, with everyone you'll talk like, उनकी vibration बहुत अच्छी थी. You don't see the vibrations. You don't actually feel them also. Right. कोई आपको tingling तो नहीं हो रही है मेरी presence से, but आपको पता है कि ये एक अच्छी vibration है. वैसे ही when I'm sending Reiki healing, maybe the other person is not feeling anything at all physically or mentally, but on a different plane of subconsciousness, he or she is getting healed. Okay. This is the beauty of Reiki healing. Okay. क्योंकि ये सबसे मुश्किल चीज क्या होती है कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि कुछ मिल रहा है तो क्या मिल रहा है. यहीं पर रोड ब्लॉक्स हैं. हाँ. ये रोड ब्लॉक्स ही हमें खोलने हैं. Right. बाकी सब मोडालिटीज में ना आपको सब कुछ पेपर पे मिल जाता है. Exactly. आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट आ जाती है 100 पेज की. ठीक है सर. आपकी न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस आ जाती है. आपके सिग्नेचर्स तक बना के भेज दिए जाते हैं. एवरीथिंग इज गिवन ऑन पेन एंड पेपर. पीपल आर वेरी हैप्पी. दिख रहा है तो है. रेकी हीलिंग इज समथिंग वेयर वी हैव टू कीप फेथ. वी शुड हैव प्रैक्टिस. और अगर आप हीलर नहीं भी हैं, हीलिंग ले रहे हैं, घर जाने के बाद भी एक भरोसा रखना है दैट माई हीलर इज डूइंग समथिंग एंड इट वर्क्स वंडर्स. ओके. सो स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन या स्किल सेट भी चाहिए कि अगर किसी ने रेकी सीखनी है तो? नो. रेकी हीलिंग कैन बी लर्न्ड बाय एनीवन. Okay. regardless of age, educational background, health conditions, anything. आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं. Anywhere from 10 years to 110 years. Okay. अगर किसी का ह्यूमन लाइफ स्पैन इससे ज़्यादा है और वो फिट एनफ फील करता है तो वो कर सकता है. Okay. आप किस रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं वो भी मैटर नहीं करता. Because religion free है, इसमें कोई वो नहीं है. It is a spiritual science. Okay. So जहाँ spirit involved है, body and mind soul alignment है, वहाँ पर उसे नाम नहीं दिया जा सकता. So there is no specific God we are praying to. We are praying to universal energies. और आपका educational background क्या है ये भी मैटर नहीं करेगा. Okay. You can be somebody from arts background, medical background, commerce, or maybe you would be somebody who has not even passed 10th. To have a knack for healing, understanding for energies, faith work, light work, you can move on. Okay, that's great. So इसमें किसी टाइप का कोई बिलीव सिस्टम भी होना चाहिए क्या? जैसे कि I don't believe in Reiki, तो still I can learn this. So there's a very thin line between belief and trust. आप हम पे believe ना करें, trust करें, you will be healed. When you go to a doctor, you don't believe him and he says, okay, but you trust him with your life. He cuts you open in half. You are not even aware what is happening to your body. You are already knocked off with the anesthesia. हम out हैं, हमें नहीं पता है क्या हो रहा है, but we give our 100% trust कि होगा, and then we start healing. We start getting the results out of it. वैसे ही believe अगर आपको नहीं है initially, ट्रस्ट के साथ चलो, टेक अ डाइव. आफ्टर 4 or 5 sessions you will 100% have belief as well. That is great. Right. रेकी सिर्फ एक ही टाइप की रेकी होती है या उसमें भी काफी सारे टाइप्स हैं? Reiki is of many types. So Reiki healing is documented at 3 places majorly. One is Karuna Reiki,
one is Kundalini Reiki, and then next is Usui Shiki Ryoho. Okay. I am myself doing Usui Shiki Ryoho modality. Okay. This is a Japanese healing modality. So yes, there are 3 kinds of major Reikis. इसके बाद जो भी है इसी की tributaries हैं या subsidiaries है. Okay. Recently I've come across people who have been using words like Narayan Reiki, Hanuman Reiki. Yes, right. But all this is documented nowhere. It's something like 10 years later, if I invent something, Neha Reiki, people are doing that also. Right. But this is all coming from these 3 major modalities only. Okay. So the principles are originating from here. उसके बाद उसको कोई कैसे भी hit and trial लगा के, like whatever floats their boat, they can move. So Right. रेकी में एक्चुअली हम सीखते क्या है, क्या प्रोसेस क्या होता है उसमें, और क्या मतलब कोई इक्विपमेंट्स भी यूज करने पड़ते हैं हमें, या कोई सम काइंड ऑफ मंत्रा मेडिटेशन, एक्चुअली प्रोसेस क्या है ये? See, Reiki healing is a process जहाँ पर कुछ steps हैं. सबसे पहले हम ऑरा चेक करते हैं, उसके बाद हम चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, साथ ही साथ में हम काउंसलिंग्स भी करते हैं. ओके. रेकी का पर्पस सिर्फ कंफर्ट तक नहीं है, हमें पेशेंट को सपोर्ट भी देना है. ओके. कंफर्ट मिल जाता है, डॉक्टर भी कंफर्ट दे सकता है, सपोर्ट हमें देना है. Because not everybody's family is supportive. Few people are, having family issues. Then where will they seek support? So we give support also. Then there are points in Reiki healing where your top to toe are covered. So Okay. we give healing for physical issues also. So all these pointers are covered when we do the Reiki healing. और सर जैसा आपने पूछा कि कोई टूल्स भी है क्या इसमें, so as such there are no tools. These 2 hands of mine are my tools. They are always with me. I will channelize energy from here only. But just to expedite the process, कि energies और साफ रहें, clarity रहे, हम selenite wands use कर लेते हैं. Selenite is a very powerful crystal which is used for cleaning the aura. ओके. Or we can keep amethyst also for protection, कि कहीं by chance कोई energy heavy हो तो हम पे एक दूसरे पर हावी ना हो, that way. And then you asked about mantra chantings. So there are no mantra chantings in Reiki healing. Because जब हम healing कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके का धर्म already follow नहीं कर रहे हैं. राइट. So we are very free to just manifest on the thought कि ये इंसान बस ठीक होना चाहिए. यही हमारा मंत्रा है. ओके. And even your food choices have nothing to do. You can be a vegan. आई वाज अबाउट टू आस्क Yeah. कि फास्ट रखने से कोई एनर्जी लेवल पे कोई फर्क आता है? Fast रखने से see for some time energies will be high ओके. because your body goes into autophagy and all. Of course, the sugar levels once drop, then start balancing. You feel good, you feel light. But after a certain time, you'll start feeling drained also. So that's a very short window where your energies are high. But Reiki healing में हम fasting, intermittent fasting और no fasting कोई concern नहीं है. ओके. Even like I was just telling you, you can be a vegan, you can be a vegetarian, or you can be a non-vegetarian. Because a Reiki healer is like a doctor. The doctor is giving you pills to pop. We are giving you energy medicine. So likewise, we don't ask our doctor what you had in breakfast. Like if you had fruits, you can do the surgery. If you had egg, I won't let you do it. Right. Similarly, whatever your healer is eating is their own personal choice. It has no effect on your healing. आपकी healing पे उसका कोई असर नहीं है. तो अब जैसे आपने बताया था कि चक्रास के बारे में बात कर रहे थे, Yes. सो लेट्स डाइव डीप इनटू दैट पार्ट, Okay. क्योंकि आई थिंक रेकी में चक्रास का बहुत बड़ा रोल रहेगा. Yes, they are the focal centers of Reiki healing. सो हाउ मेनी चक्रास वी हैव? Okay. So we as humans have 7 chakras in our body. ओके. हमारे शरीर में 7 चक्र हैं. So उसे बेहतर समझाऊं तो हमारी बॉडी एक पाइपलाइन की तरह है. So आप एक सिलेंड्रिकल पाइप इमेजिन कीजिए, ठीक है, वन अबव द अदर. जैसे केक की लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारे चक्रास लेयर्ड अप हैं. ओके. जैसे एक पाइप 3 डायमेंशनल है, या हमारी बॉडी भी 3 डायमेंशनल है. हमारी एक हाइट है, हमारी एक चौड़ाई भी है, और हमारी एक गोलाई भी है. सो ये चक्रास ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे टच कर रहे हैं या हम पीछे टच कर रहे हैं. दिस चक्रास आर लाइंग इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी and they are moving.
सो दे आर टचिंग एवरीवेयर। इनकी मूवमेंट पे काफी लोगों की एक थ्योरी है, मैम एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर मूविंग, द मूवमेंट इज मूवमेंट, नो एक्सट्रापोलेशन, एवरीथिंग इज गुड। सो दीज चक्रास आर लाइंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स, एंड इन सब चक्रास के अपने अपने स्पेसिफिक कलर्स भी हैं। ओके। And if you ask me, ma'am, how do we get to know the colors? So they are corresponding to the rainbow. अच्छा। जैसे हमारे इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, which we learned the formula Vibgyor. Vibgyor. हाँ जी, वही Vibgyor हम यहाँ यूज करते हैं। So this is violet, this is indigo, this is blue, the heart chakra is green, then your navel is yellow, then the place sacral is orange, and the root chakra is red. Right. The similar theory goes here also. Okay. Yes. So these are the 7 chakras. Would you like me to name them also for Yeah, please. everybody's हाँ, ease yeah. and knowledge? Yes, right. So chakras start from bottom to top. यूजुअली हम ह्यूमंस जब भी बात करते हैं, अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 अपने बॉडी पार्ट्स को नेम करो, हम यहाँ से 1 2 स्टार्ट कर देंगे, जेनेरिक कन्वेंशनल अप्रोच। बट चक्रास नीचे से ऊपर ओपन होते हैं। ओके ओके। द फर्स्ट साइंस ऑफ लाइफ इन अ ह्यूमन बॉडी, व्हेन somebody is pregnant or somebody conceives a life, starts from the root chakra. हमारे यूट्रस से लाइफ स्टार्ट होती है एक ह्यूमन की, तो वो हमारा फर्स्ट चक्रा है। So the reproductive parts, मूलाधार चक्रा, the root चक्रा, उसके ऊपर हमारा स्वाधिष्ठाना, the sacral chakra, it is orange in color, root chakra is red, then is your navel, nabhi, this is yellow in color, this is the solar plexus or the manipura chakra. Then you again move up, is your heart or the green colored anahat, जिसको हम बोल देते हैं अनाहत नाद also ना in Gurbani. Yeah, Love. sometime back we were just, me and my wife was thinking of कि अपने बेटी का नाम अनाहत रखेंगे. Yes, because it is love, unconditional love. Yes, Anahat. right. And then this is your throat chakra, from where you express, where you speak, where you tell people what you want. This is the major problem in today's days, right? And then is the indigo colored third eye chakra, mental intuition, clarity, brain fog, depression, anxiety. This is the epicenter for everything. And then is your topmost chakra, which is violetish, purplish in color. This is your crown chakra. Okay. This will open when all 6 are in alignment. Only then energy will go out. And then you become a magnet. It start coming down again. आपके अंदर ही वो चीज फ्लो करती रहती है। बट टू बिकम अ मैग्नेट, ये पहले 6 अलाइनमेंट में आएंगे, यहाँ से एनर्जी एक्सीड आउट करेगी एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग। ये कैसे पता लगेगा किसी कौन सा चक्र एक्टिवेटेड है, कौन सा एक्टिवेटेड नहीं है? सी फॉर दैट वी नीड टू डू सेशंस विद अ पर्सन। ओके। काउंसलिंग सेशंस करते हैं, उनसे बात करते हैं, टाइम बाय टाइम नोट डाउन करते हैं। वी मेंटेन रिकॉर्ड्स, जर्नल्स फॉर पीपल। ओके। लाइक इफ आई टेल यू somebody comes to me and has an imbalanced solar plexus, okay, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र आउट ऑफ बैलेंस है, okay, ठीक है, तो उनकी बातें बहुत डिफरेंट होंगी। जैसे he'll be very high on ego, okay, रॉक स्टार फीलिंग, गॉड कॉम्प्लेक्स बहुत होगा, घबराहट बहुत होगी। आपने काफी लोग देखे होंगे जो एटीएम की लाइन में वेट नहीं कर पाते, प्लीज मुझे पहले जाने दीजिए, मेरा इंपॉर्टेंट काम है। काम तो सभी को है, ऑब्वियस है। So they people have no patience. People with less patience are the people with a very unbalanced solar plexus solar chakra. plexus chakra. Yes, and then they have a few people who might have met ego problems. तो उनका चक्रा बंद होगा या एक्टिवेट होगा? अभी इनके चक्रास बंद हैं, मान बंद लीजिए है, okay. आए हैं हमारे पास, Right. चक्रा बंद है, क्योंकि आपने पूछा कैसे पता चलेगा बंद है या एक्टिवेट होगा। exactly. So अब इसका चक्रा बंद है। This person is bragging a lot. उसको अच्छा लगता है अपने बारे में बोलना, मेरे पास ये है, दिस इज द कार आई हैव, दिस इज द हाउस आई हैव। सो व्हेन आई सी द ऑरा ऑफ दैट पर्सन, मुझे पता चल गया ये कलर मिसिंग है इसके ऑरा से, ये चक्रा इसका बंद है। ओके। सो नाउ आई स्टार्ट हीलिंग अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड माय थेरेप्यूटिक थिंग, एंड सेशन बाय सेशन आई कीप टॉकिंग टू दिस पर्सन। सो मे बी बाय द 4th सेशन और द 5th सेशन उसका नैरेटिव चेंज हो जाएगा।
ओके so then he or she will come. सबसे पहले तो वो आकर कुछ ब्रैग नहीं करेगा, अच्छा फिर उस दिन उससे जल्दी भी नहीं होगी कि जल्दी मेरा सेशन करो, मुझे भेजो, मुझे बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी. एंड व्हेन आई आस्क हिम सो हाउज योर कार, हाउज योर हाउस, he'll be like, ma'am, please leave all that, let's focus on my healing. That's a win-win point for me. अब चक्र एक्टिवेट हो गया है, और जब मैं उसका ऑरा देखूंगी 100% a thin line of yellow will start appearing, and with more practice, more sessions, that aura will expand. This is how we check chakras and activate them. सो मैम कोई और ऐसा कोई एग्जांपल जिसके थ्रू आपने किसी को हील किया हो, जिसका मान लो कि क्राउन चक्रा क्लोज था या फिर हार्ट चक्रा क्लोज था, ऐसा कुछ? See, there have been so many cases, my personal cases, my personal clients. So for their privacy, obviously I won't pick names. Yeah, obviously. Yes, but I would try to communicate better and tell ताकि सबको clarity आए. Yeah. So there was a client of mine, उन्हें Hashimoto's था. Hashimoto's is a problem जहाँ thyroid और ज़्यादा खराब हो जाता है, Okay. and फिर self autoimmune disease में convert हो जाता है. And thyroid is the basic issue. होता ही क्यों है ये? These days thyroid is very common. Every third person has thyroid. Why? पहले इतना common नहीं था. It's not because they're having broccoli and cauliflowers. No. The reason is they are not able to express what they feel. Throat chakra blockage है अंडर एक्सप्रेशन या ओवर एक्सप्रेशन से. ओके या तो अपनी बात ये कह ही नहीं पाते बिकॉज घर पे वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस मिसिंग है, या फिर ओवर शेयरिंग. आजकल आपको ओवर शेयरर्स बहुत मिलते हैं. हाँ, हर कोई सोशल मीडिया पे डाल दिया दोस्तों. राइट, दे आर पुटिंग स्टेटसेस वेयर दे राइट सैड थिंग्स बिकॉज दे वांट पीपल टू कम एंड आस्क देम. सी, दे हैव वॉइड्स इन देयर लाइफ. अपने आप को छोटा दिखाने से भी उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही कि चलो इसी तरीके से somebody will approach me and there would be some conversation because they are missing out on conversation. Right. To initiate a conversation, they have no issues putting themselves on a lower pedestal also. बेचारगी दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है. Otherwise, for somebody, a person who has integrity will always refrain from all this. Yes. कि ये बेचारगी क्यों दिखानी है. So people show this because उनको अच्छा लगता है कि यहाँ एक somebody will ask me, attention seeking behavior. So this is all when the throat chakra is being challenged. Okay. अब इसी वजह से पहले थायराइड होगा, किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, कोई ओवर शेयरर है, कोई अंडर शेयरर है, किसी को कॉन्फिडेंस स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, कोई स्टटर करता है. हकलाना देखिए अगर बचपन से है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वी कैन get hands on it. But if we have developed with age, to fear of speaking in front of people, how to help that? For that, we need to instill confidence. Right. In these cases, I have healed my patients by balancing their throat chakra and even reversing Hashimoto's. Yes, they have to take medicine, obviously. See, always in Reiki healing, we have to make sure that we don't leave the hands of reality. Always hold the hands of reality. आपको कोई बीमारी 20 साल से है, 20 महीने देने होंगे. 20 महीने से है तो 20 दिन या 20 हफ्ते और so on that way. You cannot think कि मैम मुझे 20 साल से थायराइड है, give me 4 sessions, अभी तो मैं ठीक नहीं हुई, अभी तो मैं ठीक नहीं हुआ. Okay. So patience is the key. And then I would like to share another case of mine. There was somebody who had very bad money decisions, very bad depression, very bad anxiety, foggy, brain fog, I would say, जिसको हम आजकल अगर एस्ट्रोलॉजिकली बोले तो राहु एनर्जी कह देते हैं. दिमागी धुंध. आपको पता है ये रखने से ये चीज टूट जाएगी यहाँ पर, फिर हम उसे उसी एज पे रख रहे हैं. आफ्टर 10 minutes वो ब्रेक हो रही है और फिर हम रो रहे हैं. हमारे डिसीजन सेम नहीं है. एंड देन वी एंड अप इन अ गिल्टी कॉन्शियंस. मुझे पता था, मैंने फिर भी किया. लाइक दिस थिंग इज अफेक्टिंग पीपल इन द ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट द मोस्ट. दे नो they are going to incur losses. Okay. Still in a lust of making more money कि थोड़ा सा और हो जाए, उसका भी हो गया था, थोड़ा रिस्क they end up losing. This is the major issue because ये चक्रा ब्लॉकेज है. अब इसी वजह से डिप्रेशन किक आउट हो जाता है.
एंड आपको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ डिप्रेशन पीपल आर गिवन ट्रैंक्युलाइजर्स, सेडेटिव्स. आपको एल्प्राजोलैम जैसी मेडिसिन या बहुत सारी मेडिसिन हैं जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ऑफ कोर्स आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती. अब अगर प्रिस्क्रिप्शन से भी लेते हैं, दे नॉक यू आउट, दे आर वेरी हैवी, यू फील स्लीपी, यू फील डिजी, आपका प्रोडक्टिविटी लो हो जाता है. ओके. बिकॉज यू कैन नॉट ड्राइव, यू आर नॉट फिट टू ड्राइव, Right. you can't sit for long hours and work, you can't have a good time out with your friends because you're always dizzy, always in a sleep mode. करते 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 आप सोशली ऑकवर्ड हो जाते हो. 20 दिन लोगों से नहीं मिलोगे, वो कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर वो 20 हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 20 महीने में, एंड फिर लोग आपको भूल जाएंगे. वैसे And then you will say, no, people don't call me anymore, I am a depressed soul, I am a loner, nobody loves me. This will trigger issues like panic attacks, anxiety, or even sometimes worse, OCD. People develop OCD की habits, obsessive compulsive disorder, बार बार हाथ धोना, बार बार वॉल साफ करना. आपने बहुत केसेस सुने होंगे. इन केसेस की कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है. आपको हिट एंड ट्रायल पे रखा जाता है जब तक थोड़े से सिम्टम्स मैनेज ना हो जाएं. हम रेके हीलिंग में इसको भी काबू कर लेते हैं. टेक्स टाइम, टेक्स काउंसलिंग्स, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव दैट टच, दैट कंफर्ट एंड सपोर्ट. We as Reiki healers have that Midas touch. We give that Midas touch and the results are there. I have healed many people, but as I told you, it's very private, so I can't take names. But yes, I am glad that I could make a difference in their lives. तो अभी जैसे आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, तो डू वी नीड टू टच एनीवन और इट इज जस्ट Yeah. gesture of hands? This is a very beautiful question, sir, because many people see today we are living in a world where everything has to be very, very clear. Yes, In right. the transparent. You can't touch anybody. You never know what kind of approach is coming from there. Obviously. They can even sue you. You touched me in a wrong manner. Yeah, This is exactly. very common because you never know the intentions of Yeah, somebody. obviously. So Reiki healing is a very beautiful modality where you don't have to touch the person. Like you're sitting in front of me, I can keep my hands like this, I can give you the healing. I don't need to touch you. In Reiki healing, हम छूते नहीं हैं पेशेंट को. आप छूना चाहें तो आप छू सकते हैं if the patient is allowing you to touch me, but we don't touch. In Usui Shiki Ryoho, as I've been practicing, I don't touch the client, we don't touch the patient. We can only touch pets. I do animal Reiki also. हम एनिमल्स को टच कर सकते हैं, हम खुद को टच कर सकते हैं. Like if I'm giving Reiki to myself, I can touch my temples and give Reiki to myself because I have no ego with myself. मैं अपना बुरा कभी नहीं चाहूंगी. हाँ, obviously. एनिमल्स में भी ईगो नहीं होती. तो अब जैसे अब आप बता रहे हो कि टच करने की जरूरत नहीं है, तो एनर्जी कितनी दूर तक फ्लो कर सकती है? जितना बड़ा मेरा ऑरा होगा सर. तो अब जैसे कई बार मैंने सुना है कि ऑनलाइन भी हीलिंग हो रही है. यस. तो वो कैसे काम करती है फिर? वो भी हीलर के ऑरा से जाती है. जितना ज्यादा हीलर का ऑरा अच्छा है, ओके, ठीक है, उतनी अच्छी उसकी डिस्टेंस हीलिंग है. दिस ऑनलाइन हीलिंग इज कॉल्ड डिस्टेंस हीलिंग. डिस्टेंस हीलिंग. I would like to tell here, I would like to share the knowledge of my Zen masters. So there is a very beautiful symbol in Usui Shiki Ryoho, Reiki healing, जो मैं करती हूँ. The name of the symbol is Honsha Ze Shonen. It sounds very difficult and funny. Hon, Sha, Ze, Sho, Nen. Yes. Honsha Ze Shonen. Ze Shonen. So Okay. we call it Honsha also in short form. Okay. We can call it Honsha. So Honsha is a very beautiful symbol. ये आपका एक हिसाब से डिस्टेंस हीलिंग का STD PCO कोड है. Okay. जैसे हम when we were kids, 90s, people all know that we used to go to those calling booths and call. Yes, or right. sometimes when we Beautiful अपने time. घर से भी हम कॉल करते थे from Right. the landline. We had to put up a pre-code. Pre-code. Like if you want to call Delhi 011, if you want to call Mumbai 022, Yes. every country also has a code. India is +91, US is 1, this way. So Honsha is a symbol जो हम draw करते हैं distance healing के लिए. मान लीजिए I am in India or my loved one is in US.
So I just have to draw this code on my hands, make a connection with my loved one, and then I can start sending healing to that person. That person doesn't even have to know that I am sending the healing. Okay. मेरा ऑरा कितना बड़ा है वो डिपेंड करेगा. बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, मैम ऑरा लॉक कर दो. हम क्यों अपना ऑरा लॉक करेंगे? हमें ऑरा बढ़ाना है. Okay. लॉक करके तो हम इसे रोक देंगे. Just imagine I hit a jackpot for $1 million. Would I want to ever stop there? No. I would want it to grow. Yeah. So similar is your aura. एक बार मेरा ऑरा, मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान का ऑरा, दिस इज द फिजिकल बॉडी, ऑरा यहाँ तक है. Okay. अगर मेरा एक ऑरा इस पूरे रूम में फैल गया, इतना बड़ा हो गया, so I would want it to cover the entire city now. So why would I lock my aura और यहीं तक मैं क्यों रहूं? I would like to explain it with your due permission a Yeah, bit sure. bit better in details. आप कई बार किसी बहुत बड़े संत के आश्रम में जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने गुरु धारण किए हैं, हाँ. या हमारी बहुत अच्छी अच्छी होली प्लेसेस है इंडिया में, वर्ल्ड में हर रिलीजन की अपनी होली प्लेस है. Yeah. सो इफ वी गो टू दैट होली प्लेस, अभी हम वो सिटी एंटर करते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग वेरी पॉजिटिव, Yes, right. राइट, कि यहाँ आ गए, अब मेरे सारे दुख कट जाएंगे, एवरीथिंग विल अलाइन नाउ, Yeah. दिस इज वेरी हाई ऑन एनर्जी. And sometimes when we enter the sanctum sanctorum of that place, I would like to say the Garbhagriha. Like if you are going to Vaishno Devi, the sanctum sanctorum is that bhavan where Mata Rani is like. Yes, So right. when you enter the sanctum sanctorum or you go to Shri Amritsar Sahib, wahan par you enter the Garbhagriha, major, you know, there once you enter, sometimes आपको सब भूल ही जाता है आप क्या मांगने आए थे. हाँ. एनर्जी एकदम से फ्लो आउट कर जाती है. आप मतलब सिर्फ वहां पर शुक्राना करते हैं, यू से थैंक यू एंड यू कम आउट, एंड देन व्हेन यू आर वॉकिंग आउट टू द गेट्स, देन यू रियलाइज, ओ माय गॉड, आई डिड नॉट आस्क फॉर व्हाट आई केम. बट व्हेन यू रीच होम वो चीज सॉर्ट आउट भी हो जाती है, Okay. क्योंकि उस जगह का ऑरा बहुत हाई है. वो ऑरा एक शहर से बाहर तक भी है. Okay. सो हमें भी एज अ हीलर, जितना अच्छा हमारा ऑरा उतना अच्छा हीलिंग. सो डिस्टेंस हीलिंग इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. I have been healing clients throughout the globe, US, UK, Germany, Canada, anywhere we can send healing. तो डिस्टेंस हीलिंग में जैसे एक तो आपके फेस टू फेस कोई इंसान है, आपका लोकल सिटी में एक बंदा है, और एक मैं कहता हूँ कि यूएस में है. हाँ जी. तो क्या इफेक्ट जो होगा हीलिंग का, उनमें कोई डिफरेंस आएगा कि लोकल No, का ज्यादा no, होगा it's और यूएस वाले similar. का सिमिलर रहेगा? Completely similar. Process same है, energy same है. Rather, the person who is in front of me may be having some doubts on me. Okay. No, she's keeping her hands like this. पता नहीं क्या कर रही हैं. होता है ना, एक आपके सामने कोई ऐसा ऐसा करे तो आप sometimes you feel very funny. पता नहीं कुछ सही भी हो रहा है कि नहीं. हमारे myths भी बन जाते हैं. We as humans have a very very strong tendency of psychosomatic issues. अगर मैं आपको कॉल करूं सुबह कि मैंने आपको कल रात सपने में देखा, आपकी तबीयत बड़ी खराब थी, आपको पूरा दिन तबीयत खराब लगती रहेगी. दिस इज साइकोसोमैटिक. वी पुट इट इन आवर हेड्स. उसको भी दिखा था, मुझे हो भी रहा है. Right. सो अगर कोई सामने है ना, वो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स पिक कर लेता है. अगर कोई दूर है, वो देख ही नहीं रहा, उसको कोई डाउट्स ही नहीं है, उसके पास रादर एनर्जी ज्यादा अच्छे से जाती है. सो हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं पर बताते नहीं हैं क्लाइंट को कि कब कर रहे हैं. वो इस पर देख के मुझे याद आ गया, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि अफवाह थी कि बीमार हूं मैं, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया. यस, दिस इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ इट. जो आप बोल रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिकॉज आप जितने भी लोगों को बताएंगे, फिर वो साइकोसोमैटिकली बात बनती चली जाती है. बिल्कुल. जब कोविड आया, आपको कोई सामने मिलता था, थोड़ा सा कफ कर दिया, आपको घर आके मुझे स्मेल नहीं आ रही है, मेरा सेंस ऑफ टेस्ट चला गया. दिस इज ऑल साइकोसोमैटिक इन द हेड, चाहे उस बेचारे को कुछ है या नहीं है. एंड अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो आपने खुद को एसिम्प्टोमेटिक डिक्लेयर कर दिया, मुझे है बट मेरे सिम्टम्स नहीं है. दिस इज ह्यूमन नेचर. दिस इज हाउ इट इज. यस. सो मैम, ये तो हो गया कि रिमोट हीलिंग हो गया. तो ओरा, जैसे आप कह रहे हैं, ओरा की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं. तो हर इंसान का डिफरेंट ओरा होता है, और क्या सेम रहता है हर टाइम में? ऑरा फॉर एवरीबडी इज डिफरेंट. आपका ऑरा डिफरेंट है, मेरा ऑरा डिफरेंट है, इस रूम में जितने लोग प्रेजेंट हैं सबका ऑरा डिफरेंट है. रादर अगर एक मदर और एक चाइल्ड भी साथ में बैठे हैं, उनका भी ऑरा डिफरेंट है. Okay. हमारे ट्रिगर्स पर हमारा ऑरा डिपेंड करता है.
ओके, जैसे जैसे कि आप मान लीजिए कोई इंसान है, उसके घर का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, एटमॉस्फेयर इज नॉट कंड्यूसिव, इट्स वेरी फिनिकी, पैनिकी, हमेशा पैनिक सिचुएशन रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में। वो इंसान चाहे कितना भी बैलेंस्ड हो, कहीं ना कहीं उसका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस होगा। सुबह वो चिल्लाकर उठेगा, चिल्लम चिल्ली में हमेशा उसके माइंड में क्योस रहेगा। ओके, और जब शाम के 5 या 6 बजेंगे, जब उसे पता है हैव टू गो बैक टू दैट सेम प्लेस, उसको हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अब पता नहीं क्या माहौल होगा, आई हैव टू नलीफाई इट, मुझे एनर्जीज बैलेंस करनी पड़ेंगी, हार्ट चक्रा भी इफेक्ट हो गया। ओके, अब उसके घर वाले हैं, ही कैन नॉट बी रूड टू देम, ही हैज टू लिव विद देम और शी हैज टू लिव विद देम। अब ये चक्रा भी ब्लॉक हो गया। तो जैसे जैसे जिसके ट्रिगर्स, उसके वो चक्रास का ब्लॉकेज, जिस चक्रा का ब्लॉकेज वो उसके ऑरा से निकलता जाएगा। यानी कि somebody with 7 chakras open will have a rainbow aura. रेनबो, ओके, 7 colors we see around रेनबो that की तरह person. वन के ऊपर टू। हाँ जी। Somebody whose only throat chakra is not working. सब कलर्स दिखेंगे, स्काई ब्लू नहीं दिखेगा। अगर किसी के 3 या 4 चक्रास ओपन नहीं है तो वो विबग्योर के 7 कलर्स में से 4 कलर्स निकल जाएंगे, जो 3-4 कलर्स ओपन है वो दिखते रहेंगे। बट अगर आपको एक प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है, आपके 7 चक्रास ओपन होने चाहिए। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए फॉर लाइफ। रेकी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैंने कोई कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, डेटा डाला, बन के सब मेरे सामने आ गया, उसको मैंने इंटरप्रेट कर दिया, जनरल प्रेडिक्शंस दे दी, जेनेरिक दे दी, वर्ष फल निकाल दिया। नहीं, यहाँ पर एक्चुअल होमवर्क लगता है। अगर मैं आपकी रेकी हीलिंग कर रही हूँ, मेरा तो होमवर्क लग ही रहा है, आपसे भी मुझे होमवर्क चाहिए। ओके, कि आप जाकर उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को बचाएंगे। मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगी, शील्ड दूंगी, आपने भी थोड़ी कोशिश करनी है कि वर्कअप नहीं होना है। ओके, देन वी स्टार्ट गेटिंग गुड एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स। कई लोगों का नहीं होता, मैम नहीं होता मुझसे, वहां जाकर आई लूज आउट, फिर माई होमवर्क गेट्स डबल्ड। आई एम ऑलवेज रेडी टू वर्क डबल, बट देन वी से कि शायद थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाए। ओके, वही होल्डिंग द हैंड्स ऑफ रियलिटी, डोंट रश हीलिंग, हीलिंग टेक्स टाइम। तो अभी जैसे किसी का आप कह रहे हो कि ओरा येलो है, किसी का ब्लू है, अकॉर्डिंग टू उसका चक्रा कौन सा एक्टिवेट है। हाँ जी। तो ये आपको मतलब दिखता है हमें क्या, मतलब yes, as a Reiki healer I can see auras if I sit and focus on you on a good light colored background. I make you sit, I look at you and I just focus, I can see the colors around your body. Okay, that will show me कि क्या ऑरा है, क्या ऑरा नहीं है। रादर अगर मान लीजिए आपका बहुत अच्छा ऑरा है, ऑल कलर्स आर विजिबल, बट मुझे वो सारे कलर्स आपकी कमर के पास आकर पतले होते दिखाई दे रहे, थिन हो रहे हैं। ऑराज में एक मोटाई रहेगी, एक विड्थ रहेगी। सो ऑरा मान लीजिए इतना थिक है, ठीक है, नीचे आते आते आपकी वेस्ट लाइन के पास वो पतला होता जा रहा है। तो मैं रादर आपको आज ही बता सकूंगी कि मे बी 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको जॉइंट इश्यूज शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे आपको शियाटिका हो सकता है, यहाँ आपकी बॉडी ऑरा लूज कर रही है। तो इधर आप वर्कआउट स्टार्ट कीजिए या आप रेकी हीलिंग लेना स्टार्ट कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस करना शुरू कीजिए। ओके, यस, हम एडवांस में भी देख पाते हैं इश्यूज को। वाओ, दैट इज अमेजिंग। यस। तो मैम जैसे अब किसी का ओरा की हम बात करते हैं, तो क्या ओरा के चक्रा को बैलेंस करके हम क्या फाइनेंशियल इशू भी सॉल्व कर सकते हैं? फाइनेंशियल रेकी आजकल एक गिमिक बन गई। हाँ, काफी कुछ सुना है, क्योंकि ओवर द इंटरनेट भी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भी आपके चक्रा को बैलेंस करके या ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके या रेकी हीलिंग के थ्रू आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। आपने क्लिकबेट देखा है इंटरनेट पे? नॉट एग्जैक्टली। क्लिकबेट्स क्या होते हैं ना, जैसे आप जब आप कई बार कोई न्यूज पढ़ते हैं, समझ गया, बीच में क्लिक बेट्स आ जाते हैं, क्लिक करो और आपकी लॉटरी लग जाएगी। ये क्लिक बेट है रेकी हीलिंग का। वही है ना, जहाँ पे कुछ अच्छा होगा ना, वहां पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने आ जाएंगे। सो मनी, रेकी इज हीलिंग। हाउ कैन मनी बी हील्ड? मनी इज अ मटीरियल एसेट। मनी को तो हम हीलिंग दे ही नहीं सकते। शरीर, आत्मा, ये हील हो सकता है।
पैसा कैसे हील हो सकता है? रादर पैसा लगाकर शरीर आत्मा को हील किया जा सकता है, पैसे को तो हीलिंग नहीं दी जा सकती। ऑब्वियसली ये एक अलग प्रोसेस है, तो हम यहाँ कान ऐसे नहीं पकड़ते, अदरवाइज पकड़ते हैं। आई वुड लाइक टू शेड मोर लाइट ऑन इट। यस प्लीज। सो दिस इज हाउ, ये आपका थर्ड आई चक्रा है, राइट? दिस इज योर मेंटल इंट्यूशन एंड क्लैरिटी। जितना ज्यादा आपका इंट्यूशन अच्छा, जितनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी अच्छी, जितनी ज्यादा आपकी फार साइटेडनेस अच्छी, उतने ज्यादा बेटर डिसीजंस आप लेते हैं। आप ऐसे ही हश रश में गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर देते कि वहां पर किसी ने कहा कि ये अभी बहुत राइज कर रहा है। आप पूरी मार्केट रिसर्च करते हैं, पूरा उसके बार चार्ट्स पढ़ते हैं, एक्सेस करते हैं, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स देखते हैं, फिर लॉकआउट करते हैं, राइट। फिर आप ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स कमाते हैं। अपने आप मनी हो गई ना, मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इन योर लाइफ, अबंडेंस विल स्टार्ट फ्लोइंग इन योर लाइफ। अगर आप 2 मिनट में इसकी सुनकर, उसने मुझे फोन पर कहा है ऐसा हो जाएगा, आज मैंने कहीं हॉरोस्कोप में पढ़ा था, आज आपको मनी गेन्स होने वाले हैं, और मैंने लगा दिया, और शायद वो मनी गेन्स ये थे कि शायद मेरे को किसी एफडी का सिर्फ एक इंटरेस्ट आना था, वो थे मेरे मनी गेन्स, मैंने यहाँ बड़ा अमाउंट लगा दिया। यहाँ पर अगर क्लैरिटी नहीं है, कैसे आप मनी मैनेज कर सकते हो? तो मनी रेकी जैसा कुछ नहीं है। मनी आती है आपके मेंटल डिसीजन से। रेके हीलिंग से हम जब थर्ड आई चक्रा को स्ट्रेंथ देते हैं, योर मेंटल डिसीजंस बिकम वेरी अमेजिंग, टू द पॉइंट, क्लियर, सो यू नो हाउ इट इज एंड यू अट्रैक्ट मनी। इनडायरेक्टली क्या होगा कि ये मनी लेके नहीं आता, लेकिन हमारे इस चक्रास को बैलेंस करके, एक्टिवेट करके, या अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके हम वो एक्टिविटीज करते हैं ऑटोमेटिकली, जिनसे मनी आ जाएगी। यू अंडरस्टूड इट, यू बिकम अ पीपल मैग्नेट। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका रूट चक्रा ओपन है, आप लोगों से जेलस फील नहीं करते, आप सोशल हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आपका सेक्रल चक्रा ओपन है, आप सेक्सुअली अपने आप को अच्छा रखते हैं, ग्रूम्ड रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, सो पीपल लव यू ऑलरेडी कि यार ये इंसान हमेशा हमें अपलिफ्ट करता है, राइट? एंड देन योर मणिपुरा चक्रा इज ओपन, you have no anxiety, you have no god complex, you're a very humble person, always ready to learn, a learner, right? And then your heart chakra is open, you have love and compassion. Your throat chakra is open, you don't overshare, you say things with kindness, राइट? एंड यहाँ से जब सारी एनर्जी आके यहाँ लग रही है, सारी की सारी एनर्जी आ रही है, ये चक्रा भी ओपन हो गया, मेंटल थॉट्स अच्छी हैं, मेंटल क्लैरिटी अच्छी है, ऑफ कोर्स यू विल टेक बेटर डिसीजंस। ये चक्रा हो गया अब ओपन, क्योंकि 6 अलाइनमेंट में आ गए। जब आप में इतनी खूबियां हैं, तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। ये अच्छा बोलता है, प्रेजेंस अच्छी है, इसको आगे कीजिए। अगर आप खुद का कुछ करते हैं तो आप वहां कॉन्फिडेंस डबल लेके जाएंगे। जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एवरी अपॉर्चुनिटी ब्रिंग्स ग्रोथ विद इट, एंड ग्रोथ इज हाउ कैलकुलेटेड, ग्रोथ इज कैलकुलेटेड बाय मोनेटाइजेशन व्हिच इज मनी। सो रेके अट्रैक्ट्स मनी बट इन अ डिफरेंट पैटर्न। Okay. आपको अलाइन करता हुआ वो आपके पास पैसा लेके आता है, आपको एक मैग्नेटिक पावर बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसी कोई मनी रेके कर देंगे कि मनी फ्लो करना शुरू हो जाएगी। देखिए, जितने लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं, रिजल्ट्स कुछ नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए मनी रेके रिगार्डिंग, नीचे कमेंट सेक्शन खोल लीजिए, आपको कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं मिलती, बिकॉज फिर वो गिमिक है, जस्ट अ क्लिक बेट। वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ थिंग्स rather than falling for gimmicks. Right. That is really interesting thing. So अभी मैम एक चीज देखिए कि हमने बात कर ली कि हम अपने सबको बैलेंस करके मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं जी, और रिमोटली भी हम, आप जैसे कहते हैं बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हो। तो ये जब डिफरेंट चीजें, क्या डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट टाइप के रेकी प्रोसेस रहेगी, या प्रोसेस सेम ही है, तरीका एक ही है, मेथड एक है, बस ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हील करता जाएगा? सो रेके इज लाइक अ भागवत गीता ऑफ हीलिंग। ओके, व्हेन दे से यू ना कि आप लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में हो, भागवत गीता का कोई भी पेज खोल लो, आपको एक श्लोक मिल जाता है और वही आपका सोल्यूशन होता है। ओके, वो कभी चेंज नहीं होती, भागवत गीता वही है, इट विल नेवर चेंज। सिमिलरली रेके हीलिंग प्रोसेस नेवर चेंजेस, सेम प्रोसेसेस फॉर लाइफ। पीपल हु लर्न फ्रॉम मी हीलिंग एंड ऑल, दे कीप आस्किंग मी, मैम कुछ स्पेशल है, कुछ अलग करें। कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज में मास्टरी है,
वही एक्सपर्टीज है, वही 1 से लेकर 10 तक के कदम है, वही चलने हैं। बस आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है एज अ हीलर। ओके। I heal myself daily. I balance my chakras daily. There is not a single day when I'll miss it. If I am running low on time, मैं शायद टाइम पीरियड घटा दूंगी। मे बी मैं अगर रोज प्रैक्टिस 35 मिनट्स 33 मिनट्स करती हूँ तो मे बी मैं उस दिन उसको 10 मिनट में रैप अप करूँ, बट आई विल नेवर लीव इट। पीपल लीव थिंग्स। आजकल सर एक बड़ी मेजर इशू खड़ा हो गया है कि ना अगर आपकी मुराद एक दर से पूरी नहीं हो रही तो लोग दर बदल लेते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। इसीलिए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तभी वो कहते हैं दुआ पूरी ना होने पे लोग तो भगवान बदल देते हैं। भगवान बदल देते हैं। यहाँ से करवाया, इससे भी फर्क नहीं पड़ा, उसमें आप ट्रस्ट तो डालिए। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर कोई रेमेडीज दी हैं, प्लीज डू इट, दे विल डू इट फॉर 10 days। अरे नहीं, अब हम रेके करा लेते हैं। अब रेके हीलर बेचारा एफर्ट लगा रहा है, नहीं आपसे भी आराम नहीं आ रहा, न्यूमरोलॉजी करा लेते हैं। इसने बोला उस मंदिर में चले जाओ, उस दरगाह में चले जाओ, उस गुरुद्वारा में चले जाओ, उस चर्च में चले जाओ, या जितने भी रिलीजन्स हैं A to Z आप नेम कर लो। आजकल तो ये भी है कि इस रोड पे चले जाओ, वहां पर भी काम हो जाता है। सो आप बताइए आप कितनी जगह बदलेंगे। ये सब कुछ आप घूम के चक्र पे आ जाता है। जब ये चक्र ही बैलेंस नहीं है, मेंटल क्लैरिटी ही नहीं है, राहु एनर्जी आपको इतना एनगल्फ कर चुकी है, आप सर्कल्स में घूमते रहोगे। योर डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी 0। जहां से चलोगे घूम के वहीं आ जाओ। वो बोलते हैं ना पंजाबी में, घूम फिर के खोती बोर चले। यस यस यस। मैम हमने पहले बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ओरा के कलर, और आपने रिमोट हीलिंग के बारे में बताया था। Yes. एट दैट टाइम यू मेंशन्ड वन थिंग कि symbols. Yes. So what are the symbols? Okay. So sir, like I have just told you about one symbol which was Honsha Zeishonen, very funny name, Japanese name. So Honsha Zeishonen is a distance healing symbol, जैसा मैंने आपको बताया। जब हम distance healings देते हैं, जब कोई हमारे सामने ना हो, चाहे वो इस घर में है, इस वॉल के पीछे है, पर मैं उसे देख नहीं पा रही, तब भी हॉन्शा यूज होगा। जब कोई किसी और कंट्री में है, तब भी हॉन्शा यूज होगा। हम इस सिटी में हैं, कोई इसी सिटी में है पर मेरे सामने नहीं है, पर्सनली आई कैन नॉट सी द पर्सन, तब भी हम हॉन्शा यूज करेंगे। ठीक है सर। ऐसे ही रेके हीलिंग में बहुत सारे और सिंबल्स हैं। 2 या 3 सिंबल्स पे मैं क्विकली लाइट शेड करना चाहूंगी जो मेजर इश्यूज को कवर करते हैं। जैसे सर आज की डेट में द मेजर इश्यूज वी आर स्ट्रगलिंग विद are what? Mental issues. Mental issues are the worst issues which everybody is facing today. Right. आधे लोगों को पता नहीं है उन्हें है, जिन्हें पता है उन्हें इसी टेंशन से बढ़ता जा रहा है कि मुझे है। Going to psychiatrists or psychologists is considered that you are a mad person, so people don't take the initiative. Therapy सीख नहीं करते, बहुत गलत है, करना चाहिए। You should always consult somebody. As I am an NLP healer also, I do neuro-linguistic programming also. So that is why I have clubbed it with my Reiki healing, कि मैं लोगों को बेहतर समझ सकूं, heal कर सकूं. So there is a very beautiful symbol in Reiki healing which is called Daiko-Mu. Daiko-Mu. Yes, Daiko-Mu. Mu. Yes. Okay. It is DKM, Daiko-Mu. इसको हम यूज करते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ मेंटल हीलिंग्स। किसी भी तरह की मानसिक बीमारी, ब्रेन रिलेटेड बीमारी, या थर्ड आई चक्रा जो ये मेजर चक्रा है, मनी, मैनिफेस्टेशन, थिंकिंग, पावर, सब कुछ, तो इसे ठीक करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। Okay. The major problem I'll tell you is what? That our attention spans have gone to 10 seconds. So much of internet, so much of social media, the videos are 10 seconds long. Reels वाला Reels concept and चल रहा all. है हाँ जी, हमारा दिमाग 15 सेकंड से ऊपर है नहीं अब। अगर किसी को मैं एक 5 to 7 minutes का वीडियो भेज दूँ, बहुत तेजी से उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखेगा। खत्म करो, एंड में क्या है बता दो यार, क्या इतना लंबा कौन देखेगा, इसका कोई शॉर्ट नहीं है मैम, वो दे दो। पेशेंस नहीं है किसी के पास। यूट्यूब पे मुझे लगता है या किसी भी चैनल पे ना, पॉज एंड प्ले से ज्यादा फॉरवर्ड का बटन यूज होता है। 10 सेकंड्स फॉरवर्ड कर लो या जल्दी से खत्म करो, बिकॉज पेशेंस नहीं रही। बिकॉज अर्लियर वी यूज टू रेफर टू डिक्शनरी, हम उसमें एक वर्ड ढूंढते थे, फिर एक लेटर ढूंढते थे, फिर अंडरलाइन करके रख लेते थे,
बाद में पेज भी फोल्ड करते थे, दैट ऑल इज लॉस्ट. द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ रीडिंग बुक्स इज लॉस्ट. इस वजह से न्यूरॉन्स आर डाइंग अ फास्टर डेथ. न्यूरॉन्स फायर अप नहीं हो रहे, ब्रेन सेल्स फायर अप नहीं हो रहे. फायर अप नहीं हो रहे, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो रही हैं. एक्चुअली में हो तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि जो रील्स का कंसेप्ट है अब हम हर जगह वो देखते हैं. Right. हमारी लाइफ रील्स में चल रही है. 15 Yes. सेकंड में अगर इम्प्रेस हुए तो ठीक, नहीं, मूव ऑन, Yes. नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट. We don't give chances to people. Yeah. अभी बताओ तो ठीक है, इट्स लाइक अ मैड किंग. 15 मिनट में तुमने मुझे किया, नहीं तो बेहेड कर देंगे, जाओ. चाहे उसकी असली बात 15 सेकंड के बाद शुरू होनी थी. We're just not giving him the 16th second. Exactly. We are just losing out on patience. That is why road rage, such kind of issues where people lose out and start fighting, is why. This is because हमारा channelization slow हो गया है. बिल्कुल. इसी वजह से there is a very very major alarming issue which is rising in our country, which was earlier not here, because our ancestors were reading books. अगर कुछ नहीं था तो सब अपने अपने रिलीजन के ग्रंथ पुराण पढ़ लेते थे. ब्रेन हमेशा सेट रहता था. 90 years old grandma would used to recite the whole गुरबानी, the whole भागवत गीता. उनको वर्स बाय वर्स चीजें याद है. Exactly. आज की डेट में किसे याद है? 1 मिनट में गूगल कर लेंगे, यूट्यूब पे चला देंगे, कहीं से भी मिल जाएगा. So this is why the brain cells are dying a faster death. They are not firing up. एक्चुअली एक चीज ये भी लगती है कि जो हमारे पास चूज करने की ऑप्शंस है वो ज्यादा हो गई है. Yes. अब चीजें हमारे कंट्रोल में ज्यादा है, और जैसे मूवी देखनी है, टीवी देखना है, उसका हमारी मर्जी है अब आज के टाइम में. Yes. कि ये अभी नहीं देखा, मैं 10 मिनट ब्रेक करता हूँ, Right. पॉज करता हूँ, मैं 10 मिनट बाद देख लूंगा. Yes. कल देखूंगा, आज नहीं है टाइम. तो हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो गया. पहले क्या होता था कि कोई भी चीज है वो अपने स्पेसिफिक टाइम पे आएगी. It's like light TV. एग्जैक्टली. We don't have, we have all the, like you just said, alternatives इतने हो गए ना. We are the supreme powers now. Yeah, exactly. Everything is at our fingertips, at the internet modem. If we talk about 2000 1990s की बात करते हैं, Yeah. तो शक्तिमान आता था. Yes. और बहुत सारे Alif Laila. अलिफ लैला और कार्टून्स आते थे. Yes. डक टेल्स. I used to wait for, Tuesday, Thursday and Saturday for the 5 PM show of The Addams Family. मैं वेट करती थी क्योंकि वो 3 days a week ही एयर करते थे उसको. मुझे वही देखना होता था, The Addams Family. So I used to wait कि आज 5 o'clock I miss my tuition, but I need to watch this. Exactly. Yeah. तो मुझे याद है कि उस टाइम जब टीवी होता था, एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त. Yeah. तो एनडीटीवी पे आता था, एंड वो हर फ्राइडे और सैटरडे को आता था. Okay. शाम को 9 बजे, 1 घंटे का या जो भी टाइम होता था. सो मैं उसको मिस नहीं करता था, लेकिन जो वो क्रेज होता था जो उसको देखने का, क्योंकि एक टाइप से मोटिवेशन भी मिलती थी मुझे, तो उस सीरियल के कारण मैं अपने बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है. तो वो एक मोटिवेशन होती थी, वो एक ऐसा था कि अलग ही था. वो मिस हो जाता था, बड़ा अजीब फीलिंग होती थी. अब आएगा तो एक अलग फीलिंग है, आज वो आना है. अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है. वो वही सेम सीरियल मैं कितनी मर्जी बार कभी मर्जी देख सकता हूँ, लेकिन वो फीलिंग नहीं है अब. See, you will lose, everything will lose charm once it's yours. हाँ. Once a kid gets the moon, there is no charm for the moon. Exactly. So there are things which should always say very cynical, very mystical. See, that's why maybe we don't see God. The day we see him, we'll lose charm and love for him also. बस वो हमें दिखता नहीं है, इसलिए शायद हमारा ना एक बस एक कनेक्शन बना हुआ है कि कभी दिख जाए. What we are seeking is seeking us, but we are seeking him बस उसी में ही जिंदगी निकाल. Yeah, exactly. So like I was telling you, the brain cells are not firing up, and they are not firing up, they are dying. And they are dying. India is now recording very high cases of early onset dementia and Alzheimer's. याददाश्त जा रही है. 35, 40, you start seeing people saying, ये कहाँ रख दिया, अरे मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रही थी, मुझे याद करा दो. We are not able to join dots. These are early signs you should not ignore. We are not Chinese people that we are having ginseng tea from our childhood. हमारी genes में वो चीज़ें नहीं हैं. We used to remember things और वो हमने छोड़ दी. We are just the slaves of these small gadgets. We are totally relying on them.
हमें आजकल तो अपने लव्ड वन के फ़ोन नंबर्स भी याद नहीं है. फ़ोन टूट जाए, घर पे फ़ोन करने के लिए हमें नंबर्स याद नहीं होते. Exactly. Where to call, how to call. Earlier, I remember my dad used to keep a small diary in his pocket with all the numbers on it. The wallets used to have that diary inbuilt. उस पे सब लोगों ने पेन से numbers नंबर लिखे लिखे होते थे. होते थे. Everything is lost. Yeah, The charm exactly. is gone. We have nothing in our hands. और कुछ वही नहीं रहा. नंबर हम जब एसटीडी पे एसटीडी भी करना पड़ता था, वो Yes. नंबर डायल होते थे. Yes. तो जब आप डायल करते हो नंबर ऑटोमेटिकली याद हो याद जाता है. होता है आपको. तो अब हमें कहाँ याद है कुछ भी तो याद नहीं है. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट अब टेक्नोलॉजी वाइज बता रहा हूँ मैं Yes. आपको. When we have to reinstall any operating system on any laptop, Yes. so I don't need to add any key. लाइसेंस की डालने की जरूरत नहीं है मुझे. वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू, क्लाउड के थ्रू उसको चेक करेगा Yes. और वो हो जाएगा अगर वो है तो. सिर्फ ईमेल आईडी डालना है या जो भी है, बट की डालने की जरूरत नहीं है मुझे. एंड व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एट दैट टाइम व्हेन आई इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे की डालनी पड़ती थी हर बार. Yes. That encryption key. and Yes, all. right. Okay. तो वो की 16 डिजिट की जो की थी वो मुझे याद थी. Okay. See, now you've lost out on it because it's easier for you to just, get it from the cloud and. या ऑटोमेटिकली हो रहा था वो चीजें, वो हैबिट छूट गई है. So Yeah. you are absolutely right. So ma'am, let's come back to the same point. Yeah. Process. Like I was telling you that early onset dementia and Alzheimer's are on the rise. Mhm. That is why India is seeing large scale hospices opening. We Mhm. never had hospices in India. Hospices where elderly people are kept for care. Now people are blackmailing the younger generation अपने पेरेंट्स को छोड़ाए. बट आप देखिए, अगर किसी को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स है, उसे अपना ही नाम याद नहीं है, वो आपके लिए भी डेंजरस है, वो खुद के लिए भी डेंजरस है. That person can open the gas stove at night and somebody will get up at 5 in the morning, switch on, the house goes boom. Now tell me, what's the fun? Everything is happening because we are losing out on actual connection. We are just moving on to gadgets. इसी से आगे डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, PTSD, suicidal tendencies, OCD, all kind of migraines, all kind of headaches, dizziness, concentration issues, focus issues, sinusitis, ear ringing, you hear tinnitus, cerebral palsy, half face gone, which Justin Bieber also had lately. His half face was paralyzed. Cerebral palsy. So all this happens. Why? Because this, your brain is not functioning fine. Like your third eye chakra is not good. तो हम इसे दायको से heal करते हैं. Okay. And if I come on to the next symbol, these days people have a very, very bad habit. They don't want to bring love into their relationships. It is very, very materialistic. Barter system. You give me something, I give you something. You give me respect, then I give you money. If you don't give me respect, I won't give you money. Earlier things were not like this. Right. People used to have a mutual respect, mutual love for each other. Today things are working on barter. आप मुझे कुछ benefit दीजिए, मैं आपको कुछ benefit दूँ, that way. Obvious है. Because of that, we are seeing a rise in divorce cases. Hmm. Because couples are not understanding that living with somebody doesn't mean compromise. It means making minor adjustments. There are days one party adjusts, there are days other party adjusts. This is one of the major reasons families are falling apart. People of older mindset doesn't want to change because उनके साथ ज़्यादा lovey-dovey atmosphere नहीं रखा गया. Right. So they are not able to pass it forward. बेटन भी तो वही पास करेंगे जो खुद उठाया होगा. Obvious है. They've seen that kind of hatred. They are passing the same thing. Hmm. So to handle these cases, we use the symbol Seiheki to induce love between hearts, to balance the heart chakra. Heart chakra imbalance के क्या problems हो जाएंगे? Heart is the pump of the body. It's the strongest muscle. It starts getting calcified like your bones and teeth. So when it's getting calcified, it's not pumping blood. खून ही अच्छे से नहीं चल रहा. Heart attacks, angina, strokes. ये कुछ नहीं होगा तो आपको हाथों पैरों में numbness and tingles and everything starts happening. This is one of the major reason इतने stress पे लोगों को आजकल strokes आ जाते हैं. Earlier also people used to have problems, money issues, land issues. पहले तो property disputes भी होते थे because courts and all people used to, have solutions at home only. तब तो किसी को इतने heart attacks trigger नहीं हो रह सकते. People are now,
putting the blame on this and that, this medication. No, it is all because of stress. Your heart is not able to manage that stress. You can manage that with the help of, say, Reiki. So like this, there are many other symbols. There's one more symbol last I would like to cover. That is Raku. Rahu. Raku. Raku. R-A-K-U. K-U. So Raku is like you've seen Harry Potter. There is a mark on his forehead, like the lightning sign. Raku का symbol lightning sign जैसा है. It is for energy grounding and balancing. Okay. आजकल हम लोगों की एनर्जी ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड भी नहीं है. कुछ अच्छा हो जाता है बहुत हवा में चले जाते हैं, कुछ बुरा हो जाता है एकदम जमीन पे बैठ जाते हैं. Exactly. We are never on a basic page. To maintain somebody, to bring somebody on a basic page, we give energy with Raku. So these are like the symbols. ऐसे 4-5 symbols और हैं. So time is of the essence. Yes, right. So I told you the major Okay, ones. that's great. Right. तो मैम ऐसा भी हो सकता है कि रेकी का यूज करके किसी टाइप की कोई सिद्धि को इजी किया जा सके. Siddhis are not a part of Reiki healing. हाँ, पार्ट तो नहीं है, बट मेडिटेशन कंसंट्रेशन इसका मेडिटेशन कर सकते हैं. Every chakra has a बीज मंत्र. हाउ. हर चक्र को बैलेंस करने का एक बीज मंत्र है. ओके. सीड मंत्रा, बीज मंत्रा, जिसको चैंट करने से वो चक्रा बैलेंस होगा. कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि आजकल दिस इज फॉर हेल्पिंग एवरीवन आउट देयर. आजकल वुमेन में बहुत कॉमन है पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, यूटेराइन इश्यूज, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, कुछ भी. या मेल्स में आजकल शियाटिका हो गया. एडवांस स्टेज मेल्स में प्रोस्टेट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, या बार बार यूटीआईज हो जाते हैं, या किसी को किडनी स्टोन्स रिकरेंट हैं. ये चीजें क्यों हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ योर रूट चक्रा इम्बैलेंस. सबसे नीचे जो आपका मूल आधार है, वी ब्रेक डाउन मूल आधार इनटू 2. इट्स मूल मीन्स बेसिक, संधि विच्छेद कर लेते हैं. मूल मीन्स बेसिक एंड आधार मीन्स फाउंडेशन. It is the basic foundation of our existence. Yes, right. Right? So, if this chakra is out of balance, all these problems arise in males and females. And this is one of the major reasons of unexplained or inexplained infertility these days. Couples are struggling. This chakra is imbalanced, right? So, we balance this chakra and we can get rid of it. So, there are so many techniques of chakra balancing in Reiki healing, but the basic is Bij mantra chanting. So the Bij mantra for the root chakra is Lam. We say L-A-M. Lam. Lam. To balance the Mooladhara, if we sit in a good position, if somebody has spinal issues, वो बैठ नहीं सकते. So they can very comfortably lie down also on the bed, on the floor, how they feel comfortable. Hands can be sideways, hands can be on the chest or on your root chakra, and you can chant Lam, Lam. कितनी बार चैंट करना है? ये आपकी कॉलिंग है. 5 times, 11 times, 51 times, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. I would always suggest start from 5 minutes. Okay. Then increase your practice. Okay. The more you chant the Bij mantra, the chakra gets activated. ये problems reversal में जाती हैं, dissolve हो जाते हैं. तो रेकी कोई बंदा मतलब जैसे कोई क्लास ले रहा है, ये सीधा जाके सीखना शुरू कर सकता है या ऑनलाइन वीडियो से, या उसको किसी गुरु की जरूरत है, इनिशिएशन की जरूरत है? You always need a guru. Okay. I always tell in where I take classes or I take sessions, if we never needed a guru, so Google is you are into softwares, you know better than me. So Google is very old. Yes. I don't know how old, 30 years plus maybe. So almost 30 years, touching 3 decades down the line. Yes, right. So अब तक तो सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए थे. हम सब आराम से फ्री में गूगल से पढ़ते, मंथली इंटरनेट का चार्ज देके सर्टिफिकेट्स लेते और फ्री हो जाते. Right. तो क्या हम कभी ऐसे डॉक्टर से सर्जरी करा सकते हैं जिसने एक विंडो में गूगल और एक विंडो में यूट्यूब खोल रखा था? नॉट पॉसिबल. आपका ऑपरेशन हो रहा है, गूगल पे डॉक्टर चेक कर लें जरा सही कर रहे हैं कि नहीं, वहां तो ऐसा कुछ नहीं किया, आप इन्हें छोड़ दो. है ना? सो वी डोंट डू इट लाइक दिस, राइट? अरे भाई इसकी तो ईयर वेन इधर है, गूगल पे चेक कर, यूट्यूब पे चेक कर. और वहां मिररिंग हो रखी है तो उनको उल्टी साइड दिख रहा है, ये क्या हो गया, इसकी बॉडी गड़बड़ है. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट. सो यू नीड अ गुरु, यू नीड अ मेंटोर. अ मेंटोर विल स्ट्रीमलाइन यू.
A mentor will tell you आपके strong points, आपके weak points. So you always need a mentor to learn Reiki. यहाँ energies की बात हो रही है सर. Energies को मैं हमेशा कहती हूँ कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. Energies are very powerful. They can make you or they can break you. When you ever experience a negative energy on your life ना, then you understand कि क्या कर सकती है negative energy आपके साथ. So it can either make or break you. So you always need a guru. Never try to attempt this on your own. It is good to read, books about it. Literature पढ़िए, knowledge के लिए बहुत अच्छा है. But अगर आप ये सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, self help, लोगों की help, always get a guru. There are so many beautiful healers across the globe जो आपकी एनर्जी से मैच करें, उनको कांटेक्ट कीजिए. उसके बाद जैसा आपने इनिशिएशन पूछा, द बेटर वर्ड फॉर दैट इज अट्यूनमेंट. जी सर. So we give attunement. As a Reiki grandmaster, I am a Reiki grandmaster. I give attunement to my students. So after they achieve attunement from me, their chakras into alignment. And now they can start the healing process. बिना attunement के healing process नहीं होगा. जैसे बिना MS के स्कैल्पल उठा के MBBS का डॉक्टर सर्जरी करनी शुरू नहीं कर सकता. तो वैसे ही आप बिना अट्यूनमेंट के हीलिंग्स नहीं कर सकते. सेल्फ भी नहीं, सामने वाले किसी के भी नहीं कर सकते. राइट सर. ओके, दैट इज ग्रेट. सो किसी ने अगर रेकी सीखनी है तो कितने टाइम का प्रोसेस होता है ये? Basically, sir, see, if you want to learn the complete crux of it, it would take you around 21 days. 21 days. So 21 days में we start, मतलब ये होगा कि हमें नॉलेज पता लग गया, प्रोसेस पता लग गया, सब चीज़ें. नाउ रेस्ट डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस की. ज़्यादा बेटर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी. Yes, but 21 days आप मुझसे सीखेंगे, मान लीजिए. उसके बाद 21 days की आप सेल्फ इनिशिएशन करेंगे. Okay. 21 is a very powerful number. You might have heard the 21 days manifestation technique. Yeah. Nikola Tesla also said there's a very great power in number 21, 3, 6 and 9. So 2 plus 1 totals to 3 only. Yeah. So Nikola Tesla said दुनिया 3, 6 और 9 पे चल रही है. Right? So this is the power. So 21 days manifestation skill or technique says if you do a thing for 21 days, चाहे रोके चाहे हंस के, it becomes a habit. So you need to do the self initiation for 21 days. Like I'll teach you the whole thing. Just imagine आप मुझसे सीख रहे हैं. I'll teach you the whole thing for 21 days. We'll take classes. We'll take breaks also in between because you need practice also. Yeah. Post that for 21 days, you'll practice on yourself. You'll fill your jug first. Okay. In order to pour water to others, अपना जग फुल होना चाहिए. Obviously. पहले हम सेल्फ हीलिंग करेंगे 21 दिनों में. उसके बाद we are good to go and heal others. Okay. Yeah. So as we were discussing about कि जब आप अपने आप से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो एनर्जीज हैं, तो रेकी सीखने के बाद क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या आप कुछ एडिशनल देखना शुरू कर देते हैं या दिखना शुरू हो जाता है आपको एनर्जी एडिशनल? Once you delve deeper into the science of Reiki healing, it is just not healing. It brings your chakras into alignment. आपके जब चक्रास अलाइनमेंट में आते हैं, यू स्टार्ट सीइंग थ्रू पीपल. जो इल्यूजन्स होते हैं ना, वो क्लियर आउट हो जाते हैं. द व्हील गेट्स लिफ्टेड अप. जो ये माया जाल लोग बातों से बुनते हैं, आपको कंफ्यूजन तेज बोल के कई बार लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. और यूजुअली हम सबमिट भी कर देते हैं कि यार बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, तेजी से बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे. यही होता है ना, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स सही बोल रहे होंगे. बट वी एंड अप गेटिंग चीटेड. रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. पीपल विल सेल यू थिंग्स विद सच ग्रेट ऑडेसिटी. यहाँ ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी दैट, एंड देन पीपल आर फाइटिंग रेरा केसेस फॉर देयर लाइफ. Right. I have recently heard from somebody very close. So this is so bad to see people struggling like this. जबकि उन्हें जिसने भी बोला कितने confidence से बोला. पर जब आप Reiki healing सीखते हैं, when you become a healer or you deep delve, have a deep dive into yourself, your own self, you get to know about the alignment of your chakras. आपको चीजें समझ आने लगती हैं. वही दोबारा the third eye awakens. Your throat chakra gets very highly activated. You become very clear in your conversation.
यू Okay. डोंट बिलीव इन गिमिक्स. ये जो गिमिक्स होते हैं, क्लिक बेट्स होते हैं, इनसे आप ऊपर उठ जाते हो. तो ऑफ कोर्स आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है. तो फिर आपको बहुत सी चीजें पहले से पता चलने लगती हैं. आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाती है, Okay. प्रेमोनिशंस अच्छी हो जाती हैं. आपने देखा होगा लोग क्लैरवोयांट होते हैं. क्लैरवोयांस आगे का पता होना. जो लोग एंटिटीज के साथ या दूसरी चीजों के साथ भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये चीजें भी हम कर पाते हैं. आई एम अ एंजल थेरेपी हीलर ऑल्सो. Okay. I do angel healings also. I do angel healing teachings also. So we become a conduit also. But see, I would like to say you one thing, that this is all very funny and fascinating to hear. सुनने में बहुत अच्छा लगता है. तो but ऐसा है कि people want to get benefits of this, but they don't believe in this. Right. Everyone wants miracles in their lives, Yes. but nobody believes in magic. Yeah, exactly. कि मेरा ये काम कर दो. If I say that you have to imagine that there is a fairy sitting there, there is an angel sitting there, you have to ask him daily. अब मैम वो मुझे दिख नहीं रहा, मैं नहीं मानता. So we are not submitting ourselves. Right. Submission की कमी है. सब्र भी नहीं है, शुक्र भी नहीं है. फिर we don't have both things with us. So the solutions are delayed. Prayers will always be answered. Anything which we relay into this universe will come back to us. Right. 5 years after, 2 minutes after, 10 years after, it will depend how strongly we sent it. जितनी जोर से बॉल मारेंगे उतनी ज्यादा बाउंस बैक करके वापस आएगी. Exactly. वो आपका मेंटल गेम है. तो आपको जरूर चीजें दिखाई देती हैं, आपकी प्रेमोनिशंस अच्छी हो जाती हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो जाता है. आप नोटिस करते हैं मोर एंड मोर पीपल वांट टू टॉक टू यू. पीपल हु डोंट इवन नो यू गेट अट्रैक्टेड टू यू. किड्स आर वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू. Pets are very comfortable around you. You have very, very extremely different experiences. जहाँ लोग सिर्फ आवाज सुन पा रहे हैं किसी सिंगर की, आपको उसका ऑरा भी दिख रहा है. When he is singing a very happy song, you see that green aura is higher. Okay. He is singing a sad song, you see indigo aura नीचे चला गया. Depressing सा song है, वो तो feel करके गाते हैं ना. Right. So this is, you get a very good audio visual experience basically. Okay, So that this is what, amazing. yeah. So नेहा मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Likewise, sir. बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दी आपने और हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा. So I definitely. hope so. They love it. They enjoy it. So definitely मैम, और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपसे. So एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. Thank you so much. Let's thank the energies, the Yes, ma'am. universe, Thanks. and our Zen masters for this lovely experience. And thank you so much to you for calling me here. And it was a lovely opportunity to be at the Alpha People and giving my views here. Thank you. Thank you so ma'am. much. Thanks everyone.